وہ ہم سفر تھا مگر ہم نوائی نہ تھی۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسے موڑ نہیں لاتی، کبھی کبھی وہ ایسے راستے دکھاتی ہے جہاں محبت، نفرت اور انتقام ایک ساتھ چلتے ہیں۔ رانیہ شاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ صرف ایک عام سی لڑکی تھی، ایک باحیا، باوقار اور خوددار لڑکی جسے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا جنون تھا، لیکن قسمت نے اسے زہیب رانا کے راستے میں لا کھڑا کیا۔ زہیب جو غرور، تکبر اور طاقت کا پیکر تھا، وہ لڑکا چاہتا تھا لوگ اس کی کہی گئی ہر بات کو حرف آخر سمجھیں۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی، پر کیا کریں، ایک شفاف دل معصوم دل پر آ گیا تھا، مگر راستہ بہت خاردار تھا۔ رانیہ شاہ نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور سامنے لگے شیشے کے دروازے کو دیکھا۔ اللہ مدد کرنا، اس نے دل میں دعا کی اور دفتر کے اندر قدم رکھ دیا۔ زہیب رانا کا دفتر کسی محل سے کم نہ تھا، ہر چیز جدید اور بے حد شاندار۔ جہاں رعب اور دبدبہ محسوس ہو رہا تھا، مس رانیہ شاہ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے مسکرا کر پوچھا، جی میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، پلیز ویٹ کریں، سر ابھی بزی ہیں۔ رانیہ خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم آ کر اسے اندر بلایا۔ دروازہ کھلا اور جو شخصیت نظر آئی وہ زہیب رانا تھا، ایک شاندار اور باوقار شخصیت کا مالک، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، گہری براؤن آنکھیں جو سختی اور غصے سے بھری ہوئی تھیں، تیکھے نقوش اور مضبوط اعصاب، سیاہ گھنے بال جو اکثر ماتھے پر بکھر جاتے، لب و لہجہ اتنا رعبدار کہ کوئی بھی ایک بار کے بعد دوبارہ بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ جیسے ہی رانیہ دروازے کے اندر داخل ہوئی، زہیب نے نظریں اٹھا کر اس پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر اچانک بھویں سکوڑ لی۔ یہ کیا ہے؟ رانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی یہ لباس؟ زہیب کی آواز سخت اور تضحیک آمیز تھی۔ رانیہ نے اپنی عبایا کی طرف دیکھا جو مکمل اسلامی طرز پر تھا۔ مس، میں ہمیشہ اسی طرح کا لباس پہنتی ہوں، اس نے دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زہیب نے طنزیہ ہنسی۔ مس رانیہ شاہ، یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہاں پروفیشنلزم کو ترجیح دی جاتی ہے، نہ کہ یہ پرانے زمانے کا لباس۔ پروفیشنلزم لباس میں نہیں، قابلیت میں ہوتا ہے سر، رانیہ نے نرمی سے کہا۔ اور یلی؟ زہیب نے کرسی پر جھک کر کہا۔ جی، رانیہ منمنائی تھی، مگر میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال آیا۔ بیکاز یو آر ناٹ سوٹیبل فار دس جاب۔ زہیب رانا ایگزیکٹو چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن جانے کیوں جیسے ہی وہ چلی گئی، زہیب کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں، کچھ ایسا جو اسے باقی سب سے الگ کر رہا تھا۔ سفید رنگت، گہری جھیل سی سیاہ آنکھیں، مناسب قد، پیاری سی آواز، سر پہ اسکارف اور کوالیفیکیشن کا تو پوچھے ہی مت، ایسی گھریلو حلیے والی لڑکی، MBA ٹاپر ہے، انٹرسٹنگ بیوی والی، فریم میں بالکل فٹ، اس نے خود سے کہا اور جلدی سے ایک فیصلہ کر لیا۔ مس رانیہ شاہ، آپ کل سے اپنی جاب جوائن کر سکتی ہیں۔ زہیب رانا کی سیکریٹری کی کال سنتے ہی رانیہ کے چہرے پر ایک روشنی سی دوڑ گئی، اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ یہ جاب اس کے لیے صرف ایک نوکری نہیں تھی، بلکہ ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جسے وہ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح وہ انتہائی اعتماد اور وقار کے ساتھ اپنے نئے آفس پہنچی، مکمل اسلامی لباس میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ کمپنی کی عالیشان انٹرنس سے اندر داخل ہوئی۔ مس رانیہ شاہ، آپ کو فوری طور پر باس کے کیبن میں بلایا گیا ہے، ریسیپشنسٹ نے مؤدبانہ انداز میں اطلاع دی۔ رانیہ نے گہرا سانس لیا اور مضبوط قدموں کے ساتھ زہیب رانا کی کیبن کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ باس کی چیئر پر آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے نفاست سے سیٹ کیے گئے بال
महंगा सूट और चेहरे पर बेनियाजी की झलक लिए बैठा था। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। मगर रानिया शाह वो एक अलग ही मिजाज की लड़की थी। ज़ुहैब ने रानिया को सरतापा देखा। वो हर लिहाज से परफेक्ट लग रही थी, साथ ही उसका मुकम्मल लिबास ज़ुहैब को आज नागवार भी नहीं लगी थी। बैठे, रानिया ने खामोशी से कुर्सी संभाली। ज़ुहैब ने चंद लम्हे उसे बगौर देखा, फिर अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए एक गहरी मुतवक्का बात की। मिस रानिया शाह, मैं एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। रानिया ने संजीदगी से उसे देखा, इंतज़ार किया कि वो आगे क्या कहने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। रानिया को लगा जैसे किसी ने एक पल के लिए उसकी समातें बंद कर दी। क्या वो हैरान रह गई। जी हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ुहैब के लहजे में बला का इत्मीनान था। रानिया ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा। सर, मैं नौकरी के लिए आई हूँ, शादी के लिए नहीं। ज़ुहैब के चेहरे पर सख्ती दर आई। सोच लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मगर रानिया ने अपनी रिवायती हिम्मत और वक़ार बरकरार रखते हुए कहा, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ और मेरा जवाब नहीं है। ज़ुहैब की आंखों में एक अजीब सा शोला लपका। वो शायद पहली बार किसी की ज़ुबान से इनकार सुन रहा था। अच्छा, तो फिर देखते हैं तुम कब तक अपनी इज्जत पर कायम रहती हो। मिस रानिया शाह, ज़ुहैब ने अपनी मोबाइल की स्क्रीन रानिया के सामने करते हुए पूछा। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। ज़ुहैब ने अपने मोबाइल की स्क्रीन रानिया के सामने करते हुए तंज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, इन्हें तो पहचानती होगी। रानिया ने जैसे ही नज़र डाली, उसका दिल दहल कर रह गया। स्क्रीन पर उसके वालिद की तस्वीर थी और साथ ही किसी नामालूम शख्स के साथ एक तस्वीर भी जिसका चेहरा धुंधला था। जी, ये मेरे बाबा हैं, उसने धड़कते दिल के साथ कहा। ज़ुहैब ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और मेज़ पर धीरे से उंगली बजाई, जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेने का मुकम्मल इख्तियार हो। मुझे भी पता है कि ये तुम्हारे बाबा हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उनके साथ जो शख्स है वो मेरे एक इशारे पर उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता है। रानिया की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। उसका हल्का खुश्क होने लगा, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। क्या तुम ऐसा चाहोगी? ज़ुहैब ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, जैसे उसका फैसला तय था। नहीं। रानिया खौफ से कांप उठी, आंखों में आंसू तैरने लगे। ओके, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, नहीं तो। ज़ुहैब की आवाज़ में सख्ती थी। रानिया ने बेबसी से उसका चेहरा देखा, जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो, मगर कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, एक तवील सांस लिया और जब दोबारा आंखें खोली तो उसमें शिकस्त की नमी थी। आप कुछ नहीं करेंगे? रानिया ने हल्की कपकपाती आवाज़ में कहा। फिर एक पल के तवक़्फ़ुफ़ के बाद जैसे अपने आप को मजबूत किया, मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। ज़ुहैब के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। गुड गर्ल। ज़ुहैब के अल्फाज रानिया के लिए किसी खंजर से कम न थे। ज़ुहैब के सख्त अल्फाज और ब्लैकमेल के धमकाने के बाद रानिया का दिल जख्मों से भरा हुआ था। ये मेरी तकदीर नहीं है, मैं अपनी इज्जत और वक़ार के साथ समझौता नहीं कर सकती। रानिया दुखे दिल के साथ सोच रही थी, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किए जा सकते, बस दिल में महसूस किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही रानिया के साथ था। ज़ुहैब के अंदर एक ऐसी खामोशी छा गई जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। दिन रात की सख्तियों और दफ्तर में रानिया की साबित कदमी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जहाँ उसने अपने दिल के जज्बात पर गौर किया, वह एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठा था जिसके अंदर हौसला, वक़ार और खुद एतमादी कूट कूट कर भरा था। कुछ दिनों बाद ज़ुहैब ने अपने दफ्तर में एक इंतहाई संजीदा मीटिंग बुलाई। तमाम अमला मौजूद था और ज़ुहैब ने ऐलान किया, आज से हमारे ऑफिस की पॉलिसी में तब्दीली की जाएगी। मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। मिस रानिया शाह की मेहनत और काबिलियत ने मुझे ये सिखाया है कि अदावत और धमकी से कुछ हासिल नहीं होता। मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा से एक नया आगाज़ करने का इरादा रखता हूँ। ये बातें सुनकर अमले में एक नई हवा दौड़ गई। रानिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई।
अलग बात कि अमले ने ज़ुहैब राना की बात न समझ पाई हो, मगर उसने सबसे ढके छुपे अल्फाज में माफ़ी मांग ली थी, और यही अमल ज़ुहैब राना को रानिया के दिल में जगह दे गई। उसने न सिर्फ दफ्तर में बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी अपनी खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। रानिया ने पहले दिन से दूरी बरकरार रखी थी, मगर जब ज़ुहैब ने बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर अपनी माफ़ी और सुधार का सबूत दिया तो उसके दिल में नरमी पैदा होने लगी। मैंने हमेशा सोचा कि मेरा तरीक़ा ही दुरुस्त था, मगर आज मैं समझता हूँ कि मोहब्बत और एहतराम के बगैर कुछ भी नहीं। ज़ुहैब सिगरेट का कश लेते बोला था, ओके फिर एक काम कीजिए, आज से सिगरेट अवॉइड कीजिए। नज़रें नीचे किए बोली, अवॉइड क्या, मुकम्मल छोड़ दूंगा। खुशी से बोला, मोहब्बत वो नहीं जो धमकियों और जुल्म से जुड़ी हो, बल्कि वो है जो एक दूसरे के दिल की कदर करे। रानिया ने नरमी और खुशी से कहा। ज़ुहैब राना जो कभी अपने सख्तगीर और गुरूर की वजह से पहचाना जाता था, उसी गुरूर को तोड़कर रानिया के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के साए थे, लहजे में नरमी और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश कि वो रानिया से अपनी हर गलती की माफ़ी मांग ले, उसके दिल में अपनी मोहब्बत की जगह बना ले। रानिया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन शायद तुम कभी नहीं जान सकोगी कि मैं खुद भी उन दुखों से गुजरा था। ज़ुहैब ने उसके हाथ थामते हुए कहा। उसकी आवाज़ में खुलूस की गहराई थी। रानिया ने पलकें उठाकर उसे देखा। उस शख्स की मोहब्बत में जो शिद्दत थी वो किसी भी औरत के दिल को मोम करने के लिए काफ़ी थी। आज उसके दिल में कोई शिकायत बाकी न रही थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया ज़ुहैब, उसने धीरे से कहा, और ज़ुहैब की आंखों में चमक उभर आई। आज रानिया को अपना ये कमरा बेहद प्यारा लग रहा था। वही कमरा जहाँ कभी वो बेबसी और आंसुओं के साथ आई थी, आज वहाँ खुशियों की रोशनी थी, मोहब्बत की खुशबू थी। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि आज उसे ये कमरा नहीं बल्कि अपनी किस्मत सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत में एक शहजादे जैसे शख्स को उसका हमसफ़र बना दिया था। वो ज़ुहैब राना जो कभी उसके लिए खौफ की अलामत था, आज उसका मुहाफ़िज़ बन चुका था। ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। जहाँ हर रास्ता खुशियों की तरफ जा रहा था, आज उसके दरमियान सिर्फ मोहब्बत थी, सच्चाई थी, और एक ऐसा हमसफ़र था जो हमेशा के लिए साथ चलने का वादा कर चुका था। वो हमसफ़र था मगर हम नवाई नहीं थी। एक ऐसी दास्तान है जो दिखाती है कि कभी कभी ज़ाहिरी दुश्मनी अंदरूनी मोहब्बत में बदल जाती है। ज़ुहैब और रानिया की कहानी हमें ये सबक देती है कि एहतराम और मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बेरंग है, और जब दिल सच्चे हों तो हर मसले का हल निकल ही आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और मेरे बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ें आएँ प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।